In this video, we will start the new chapter, that is public, private and global enterprises. Till now we were discussing various forms of business organization. We have discussed, it is somewhat related to that also. That is related to the previous chapter, wherein we have discussed the various forms of business enterprises. And that enterprises were in the, you can say, the private sector. Those enterprises which we have discussed in the previous chapter, they were related, or they comes under the private sector. Now here we have to study about the public sector, and one more thing which we have to study is the global enterprises as well, which we have not discussed in the previous chapter also. So this is a new chapter, and name of the chapter is public, private and global enterprises. Now as we know, the Indian economy is, you can say, actually is divided into two sectors, that is the private sector and the public sector. Initially, at the time of independence, most of the focus or main focus of the, you can say, the government of India was toward, you can say, a socialist pattern of society, wherein it was devised that you can say the enterprises which are of national importance or where more investment is required will, you can say, will be handled by the private sector, that is the public sector, that is the government will be handling and managing those activities. And rest of the activities the private sector will also be allowed. And this type of economy where both private and public sector coexist is known as a mixed economy. Now the mixed economy under here similarly the Indian economy is mixed, where there is private sector as well as the public sector is also there. Let us first of all learn this thing with the help of a flow chart, and later on we will discuss the various enterprises which we will be discussing under the public enterprises, public sector as well as the global enterprises as well. First of all, let us draw the chart actually, that is the Indian economy. It is divided into two sectors, or simply you can say the economy is divided, or you can say the Indian economy, or simply you can say the economy also. It is private sector and public sector. Public sector. The private sector part which we have studied, under the private sector are the sole proprietors. Sole proprietorship. Then partnership was there, partnership, joint Hindu family, This is only under Indian economy you will find, because in the rest of the world except India this form of business organization do not exist. Then cooperative societies are there, cooperative societies. And the lastly, that is a company form of organization, that is company. That is company also. Besides one which we have not studied in the previous chapter under forms of business organization was the global enterprises. Global enterprises. These are also known as MNCs also, multinational companies or corporations. MNCs. These are also known as MNCs or multinational corporations. Now come to the public sector. The main focus of our study in this chapter will be this public sector as well as the last one, that is the global enterprises or the MNCs. Now under public sector, there are three are there. These are departmental undertaking. Departmental undertaking, then government companies, and the last, that is the statutory corporation. The statutory corporation. This is the Indian economy that is divided into the private sector and public sector. Under the private sector, we have studied all these things. The 5 types of business organization which we have studied. The last one, that is the global enterprises or the MNC, which we will discuss later. Under the public sector come the departmental undertaking, government companies and the statutory corporation. Now one by one we will be discussing first of all under the private sector the departmental undertaking. What is this departmental undertaking? Now the departmental undertaking
Here, let us see first of all write it. Departmental undertaking. Departmental undertaking. Now this is a department. Why it is known as departmental undertaking? Because it is under the government of India. Under the government of India, there are various ministries are there. And the government functions by creating various departments, and various departments are kept under a minister. Minister in charge is there. A particular minister will be in charge of that particular department. So that is why a departmental undertaking is one which is considered when a government, generally this departmental, why this is created also. This departmental undertaking is created for very important, you can say, performing very important function which is of national importance or security. For that type of working, the government creates a department and the organization is managed as a, you can say, part of the government. That is why it is known as departmental undertaking. डिपार्टमेंट क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, अपने विभाग का, गवर्नमेंट अपनी अलग अलग रन करने के लिए अलग अलग इकोनॉमी को डिवाइड करके रखी है, मतलब अलग अलग मिनिस्टर्स वगैरह क्रिएट करके रखे हैं, बना के रखे हैं, और हर मिनिस्टर एक पर्टिकुलर इंचार्ज, हर चीज के इंचार्ज के रूप में काम करता है. फॉरेन मिनिस्टर फॉरेन एक्टिविटीज को देखता है. इसी तरह अलग अलग एक्टिविटीज को देखने के लिए अलग अलग मिनिस्टर्स बना के रखे जाते हैं. अब रोड ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर जो रहेंगे वो उसको देखेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट. रेलवेज के लिए अलग से मिनिस्टर रहेंगे. इसी तरह पोस्ट और टेलीग्राफ के लिए, कम्युनिकेशन के लिए अलग से मिनिस्टर रहते हैं. तो अलग अलग मिनिस्ट्री बना के रखी जाती है. तो गवर्नमेंट अपने विभाग का एक्सटेंशन, इसको माना जाता है कि गवर्नमेंट का एक हिस्सा ये अंग है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. इसी के लिए इसका नाम डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, मतलब डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपने वर्किंग को डिपार्टमेंट वाइज क्रिएट करके रखती है और उसको रन करने के लिए गवर्नमेंट ही अपने मिनिस्टर को इंचार्ज बना के रखती है. इसी के लिए उसको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहा जाता है. नाउ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स वगैरह यही हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उसे मैनेज और ओन करती है. गवर्नमेंट डायरेक्टली उसे ओन करती है. अगेन इसके कर्मचारी वगैरह भी जो एम्प्लॉयज हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाते हैं या गवर्नमेंट के कर्मचारी माने जाते हैं. थर्डली, आप इसके जो इनकम है या जो एक्सपेंसेस है डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खाते से या ट्रेजरी से, मतलब गवर्नमेंट के खजाने से इसके खर्चे वगैरह भी होते हैं. गवर्नमेंट के खजाने से इसकी इनकम भी गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी, इसके एक्सपेंसेस भी that will go into the, you can say, which will be borne by the government of India. तो ये इसके फीचर्स वगैरह है कि गवर्नमेंट इसके जो मोर ओवर इसके जो हेड रहते हैं, वैसे तो ये मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट है वो किसी मिनिस्टर के अंडर में रहता है, लेकिन ये डायरेक्टली एक्चुअली में ये जो रन करते हैं इसका सीईओ या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरली वो जो आईएएस ऑफिसर वगैरह होते हैं, आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह इसको जनरली रन करते हैं. इसके मेन उसके जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय, अगर से जो कर्मचारी में कहिए तो कर्मचारी में सबसे सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं जो उसे मैनेज करते हैं. और वैसे भी ये परमानेंट पोस्ट नहीं होती, ये कभी भी ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है आईएएस ऑफिसर वगैरह की. तो एनी टाइम दे कैन बी, आज अगर से अपॉइंट किया गया हो सकता है 2-4 दिन के बाद ही उनको ट्रांसफर किया जा सकता है. तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज ये भी रहते हैं, लेकिन ये इजीली ट्रांसफरेबल भी जॉब रहती है. जो आईएएस ऑफिसर रहते हैं वो डिपार्टमेंट को हेड करेंगे, उन्हें कभी भी रिमूव किया जा सकता है. रिमूव किया जाएगा इन सेंस किसी दूसरी जगह पे उन्हें किसी अलग पोस्टिंग पे भेज दिया जा सकता है, उन्हें निकाला नहीं जा सकता, मतलब अलग पोस्टिंग पे किया जाता है. तो उनके जो हेड रहते हैं, मतलब सीनियर मोस्ट जो एम्प्लॉयज रहते हैं उसमें आपके गवर्नमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर्स वगैरह ही रहते हैं. लेकिन ये इसी के फीचर्स हैं. उसके खजाने या इनकम भी उसे गवर्नमेंट के इनकम की तरह ट्रीट की जाती है, गवर्नमेंट के खजाने में उसे जमा किया जाता है. खर्चे भी जो होते हैं रेलवेज के, जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है तो रेलवे के खर्चे, रेलवे के लिए अलग से बजट प्रेजेंट होता है, गवर्नमेंट के खजाने से उसके पैसे खर्चे वगैरह होते हैं. जो पैसे इनकम रेलवे की होती है वो गवर्नमेंट के खजाने में आएंगे. इसी तरह पोस्ट और टेलीग्राफ भी है. ये क्या है, दिस इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, क्योंकि कोई एक डिपार्टमेंट अलग से क्रिएट करके रखा गया है जिसके अंडर में पोस्ट और टेलीग्राफ भी आता है, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का. तो ये फीचर्स उसके हैं. अब नाउ इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी काफी हैं. इसके फायदे भी हैं लेकिन साथ में कुछ नुकसान भी है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के. अब आप जैसे जानते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इसके मेरिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस. इसके मेरिट्स क्या है, इसके फायदे यही है कि गवर्नमेंट इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है, और यू कैन से गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. पहली अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहती है, अकाउंटेबिलिटी.
अकाउंटेबिलिटी फिक्स क्या है? गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरबिलिटी, कौन जवाबदेही। ऑर्गेनाइजेशन, कोई डिपार्टमेंट अगर से बढ़िया से काम नहीं कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है तो उसका श्रेय भी जाएगा, क्रेडिट उसको दिया जाएगा, या उसको अगर से अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको आंसरबिलिटी किसकी बनेगी? गवर्नमेंट की बनेगी। गवर्नमेंट आंसरेबल या अकाउंटेबल होगी। तो इसका एक फायदा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स है, ये भाई आपको ही जवाब देना। गवर्नमेंट से बढ़िया रेलवेज में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट जवाब देगी कि क्यों गड़बड़ हो, कोई और किसी से पूछना नहीं। मतलब इसके लिए एक चीज बढ़िया यही है कि गवर्नमेंट एकदम अकाउंटेबल रहती है। मोरओवर इसका फायदा ये है कि गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम किसके लिए? ये गवर्नमेंट के लिए। ये फायदा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये फायदा गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिट्स क्या है इसकी? इट इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है कि इसकी इनकम जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के खजाने में जाती है, तो गवर्नमेंट को भी इससे फायदा है। मोरओवर इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा या की बात होती है। यहाँ पे ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिसकी सिक्योरिटी मतलब कंट्री में उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर से वो चीज है तो उसके लिए इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना डिपार्टमेंटल, जिससे गवर्नमेंट उसको डायरेक्टली हैंडल कर सकती है या मैनेज कर सकती है। और रेलवेज एक इंपॉर्टेंट उसी तरह है, इसी के लिए रेलवेज को क्या है, गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको मैनेज या हैंडल करती है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी मान के चलिए अगर से युद्ध हो रहा है, कोई ऐसी चीजें हो रही है और गवर्नमेंट को लार्ज स्केल पे मोबिलाइजेशन करना है, कुछ ट्रूप्स का मूवमेंट करना है, वेपन्स या डिफेंस इक्विपमेंट्स का मूवमेंट करना है, तो ये बड़ी चीजें किससे ट्रांसफर की जा सकती है? लार्ज स्केल पे कैसे हो सकती है? ओनली थ्रू रेलवेज। एक बहुत बढ़िया साधन है जिससे एकदम फास्ट ट्रांसपोर्ट भी है और आपको इजीली आपको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। मतलब चाहे ट्रूप्स का मूवमेंट हो, सैनिकों का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह करना हो, या तो इक्विपमेंट का हो या वेपन्स का हो या किसी तरह का ऐसे सामान की मूवमेंट करना है, तो इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेशनल सिक्योरिटी की जहाँ पे बात होती है। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वहीं पे क्रिएट करके रखी जाती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस की ज्यादा बात हो, वहां पे मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो या राष्ट्र के हित में बहुत ज्यादा हो, सुरक्षा से ना भी हो लेकिन अगर से पब्लिक के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में हो, सोसाइटी के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में हो, तो उसे भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंडर में रखा जाता है। नाउ फोर्थ, नाउ दिस आर सिक्योरिटी ऑफ जॉब। अब ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे देख रहे थे नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे नेशन के मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, या तो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा ये क्या है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब। अब जो लोग कर्मचारी उनके लिए सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर में एज यू नो एम्प्लॉयज क्या है, मे बी एम्प्लॉयज कैन बी हायरिंग एंड फायरिंग बहुत इजीली होती है। मतलब आज उन्हें नौकरी पे रखा गया, कल को भी निकाला जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में इट इज पॉसिबल, बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब दैट इज इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इजीली वहां पे सिक्योरिटी ऑफ जॉब रहती है। सिक्योरिटी इन द सेंस क्योंकि वहां पे जॉब की सिक्योरिटी है। इजीली अगर से आपको कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, रेलवे में कोई काम कर रहा है, गवर्नमेंट चाहे तो कि उसको तुरंत निकाल दे, वैसे नहीं निकाल सकती, विदाउट रीजन नहीं निकाल सकती, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत वायलेशन, बहुत बड़ा कोई गलती अगर से ना किया हो तो उसे निकाला नहीं जा सकता। किसी भी एम्प्लॉयज को वैसे ही गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती विदाउट एनी रीजन। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू से जो एम्प्लॉयज है उनकी यहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। नाउ प्रेस्टीज ऑल्सो यू कैन राइट प्रेस्टीजियस। जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो वैसे भी दे कंसीडर देमसेल्फ वेरी प्रेस्टीजियस। अपने वो पोजीशन या स्टेटस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से देख लीजिए तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, उनकी एक स्टैंडिंग सोसाइटी में उनके लिए बहुत अच्छी स्टैंडिंग रहती है कि क्या भाई दे आर वर्किंग रेलवे में कोई काम कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है, एक सिक्योरिटी मतलब एक स्टेटस का सिंबल भी एक तरह से अटैच रहता है फॉर द एम्प्लॉयज दोज हु आर वर्किंग देयर। दे हैव ए यू कैन से सिक्योर मतलब वेरी प्रेस्टिजियस सोसाइटी में उनकी प्रेस्टीज या स्टेटस इन द सोसाइटी इज समवट हाई, उनकी सोसाइटी में थोड़ा स्टेटस हाई भी रहता है। These are some of the merits. Again, some demerits are also there. The departmental undertaking, the demerit part. Demerits. इसके क्या नुकसान क्या है, मतलब इनके डिसएडवांटेजेस क्या है, आप कह सकते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पहली बात यहाँ पे है देयर इज
lack of, you can say, attention toward the undertaking. लैक ऑफ अटेंशन टुवर्ड द अंडरटेकिंग, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कई बार वहां पे लैक ऑफ अटेंशन रहता है। लैक ऑफ अटेंशन मतलब कम ध्यान दिया जाता है, जनरली ध्यान नहीं दिया जाता है। ये कंप्लीटली क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? क्योंकि मिनिस्टर इंचार्ज, वो तो मिनिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है जनरली कि हाउ द मिनिस्टर इज एक्टिव। जनरली द मिनिस्टर इज एक्टिव, ही मे फोकस मोर अटेंशन, और ज्यादा ध्यान वहां पे दे सकता है। समटाइम अटेंशन मिनिस्टर्स आर, यू कैन से मोर ओवर, दे आर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में ही इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे इलेक्शन आ गया, पता चला कि बोले इलेक्शन में इतना ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग या अपने जो डिपार्टमेंट के जो हेड है उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं रहता, तो वो इलेक्शन में कई महीने तक इलेक्शन में बिजी रहते हैं। पूरे कंट्री में एनी टाइम कभी लोकसभा का इलेक्शन है, तो कभी राज्यसभा का है, कभी स्टेट में इलेक्शन है, तो कहीं कुछ ना कुछ इलेक्शन होते रहते हैं। और जो मिनिस्टर वगैरह भी रहते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो लोग इन्वॉल्व इलेक्शन में हो जाते हैं। तो काफी समय पे वो इलेक्शन में ही समय वो इतना दे देते हैं कि अपना जो डिपार्टमेंट है उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन ही नहीं रहता। अब ज्यादा अटेंशन ध्यान नहीं देगा तो ऑब्वियसली ये एक नेचुरल चीज है कि जब आदमी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देगा तो उसका प्रोग्रेस होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि देयर इज लैक ऑफ अटेंशन बाय द मिनिस्टर्स बिकॉज दे आर मेनी टाइम्स दे आर एंगेज्ड इन सम, यू कैन से द वेरियस इलेक्शंस आर हेल्ड इन द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देयर मेनी फॉर मेनी मंथ्स दे रिमेन बिजी इन द इलेक्शन itself, so they do not focus much attention on the department which they are heading actually. Now next is the impersonal work environment is there. Impersonal work environment, देखिए impersonal work environment because here the owner and you can say the employee, there is directly वहां पे रिलेशन नहीं रहता है मालिक के बीच में और उसके बीच में, मतलब एम्प्लॉयज के बीच में डायरेक्टली बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं रहता। मालिक यहाँ पे कौन है? द गवर्नमेंट इज देयर, गवर्नमेंट विद द पीपल इज द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होता है? हम ही आप ना गवर्नमेंट है जो क्रिएट करता है सरकार। अब वहां पे सरकार के साथ और एम्प्लॉयज के साथ एक बहुत बढ़िया संबंध एक तरह से कोई खास रहता नहीं, तो वहां पे देयर इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, बहुत ज्यादा पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, किसी का उसके साथ बहुत पर्सनल अटैचमेंट, किसी भी एम्प्लॉयज का किसी के साथ पर्सनल अटैचमेंट नहीं रहता, ऑर्गेनाइजेशन के मालिक से नहीं खास करके रहता है, तो वहां पे इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट रहता है। तो पर्सनल जब तक आदमी बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट मतलब एम्प्लॉयज के साथ या पर्सनली मिल के लग के काम नहीं करेगा तो वो वर्क जो है बहुत इफिशियंसी उसमें नहीं आएगी। तो देयर इज इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, आदमी बहुत ज्यादा पर्सनली अगर से इंटरेस्ट नहीं वहां पे देगा, जो जब पर्सनल इंटरेस्ट किसी चीज का नहीं रहता है वहां पे क्या चीज होता है? वर्किंग भी बहुत बढ़िया नहीं होती है। मोरओवर देयर इज वेरी करप्शन इज वेरी हाई, करप्शन इज हाई, करप्शन वहां पे बहुत ज्यादा। आप कई विभागों में खास करके गवर्नमेंट के आप विभागों में देख लीजिए, देयर इज very high level of corruption in there. Private sector में you go, you will not face very much, you can say the corruption chances of corruption is low, or there is at least negligible corruption is there, वहाँ पे बहुत ज़्यादा corruption नहीं था। But with regard to government enterprises, the departmental undertaking, जहाँ पे गवर्नमेंट के जहाँ पे भी विभाग है, आप ज़्यादातर विभाग में गवर्नमेंट के देख लीजिए, there is very high level of corruption is there. In practically you will be feeling also, you are seeing that there is, जहाँ पे गवर्नमेंट के विभाग है वहाँ पे करप्शन बहुत लार्ज स्केल में है, और क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे अल्टीमेटली उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस कौन बियर करता है? या तो जनरल पब्लिक और या तो कस्टमर इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे रेलवे में है तो कस्टमर वहाँ पे कौन से है? जो ट्रैवलर है, तो रेलवे की देख लीजिए कई बार स्टेशन गंदे रहेंगे, या तो ट्रेन की क्लीनलीनेस या सैनिटेशन वगैरह नहीं रहेगी, अन टाइम ट्रेन नहीं चलेगी, कोई टिकट नहीं ले रहा है, घूस दे के चला जा रहा है, इस तरह से ढेर सारे करप्शन के एक तरह से वो सेंटर ऑफ करप्शन आप कह सकते हैं कि वो हो जा रहे हैं डिपार्टमेंटल लार्ज स्केल करप्शन इज देयर। नाउ फोर्थ इज द लेथार्जिक एम्प्लॉयज, लेथार्जिक एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज बिकम लेथार्जिक मतलब लेजी हो जाते हैं, एम्प्लॉयज लेथार्जिक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी, द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यू गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज माने जाते हैं, तो जहाँ पे जॉब की बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रहती है तो एम्प्लॉयज वहाँ पे लेथार्जिक हो जाते हैं, एम्प्लॉयज लेजी हो जाते हैं, जानते हैं कि हमें तो निकाला नहीं जाएगा, अब वो काम करे या ना करे हमें कोई दिक्कत नहीं, सैलरी बन रही है, जब अगर काम किए हुए सैलरी बन जाएगी तो कौन काम करना चाहेगा? कितने लोग काम करना चाहेंगे? देयर इज वेरी लेस चांसेस दैट
very less number of people are honest that they will be getting salary. If the job is secure, people generally try to do not work, you can say do not pay much attention to other work also. Similarly आप देखेंगे प्राइवेट सेक्टर में जहाँ की जॉब की सिक्योरिटी कम रहती है तो वहाँ पे आदमी मेहनत से काम करता है, जानता है कि मान लीजिए मैं बढ़िया से काम नहीं करूंगा, मे बी आई विल बी किक्ड आउट ऑफ द कंपनी ऑल्सो। लेकिन यहाँ पे जानते हैं कि मुझे किक आउट नहीं किया जाएगा, मुझे बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ और गवर्नमेंट मुझे इतनी आसानी से निकाल नहीं सकती। तो यहाँ पे क्या होता है, वो लिथार्जिक हो जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरली बिकम लिथार्जिक ऑल्सो। So these are the various some of the demerits also. So we will discuss the next demerit, that is the, you can say, the government company. Its demerit features and meaning we will discuss in the next video.